वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनको मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ एंड मैं अगर इनको इंट्रोड्यूस कराऊँ तो पूरा घंटा शायद इसी में गुजर जाएगा बिकॉज ही इज़ डन एंड ही इज़ ऑलवेज डूइंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड इट समटाइम्स इज़ इवन डिफिकल्ट कि आप ट्रैक रख सकें। बट साद हामिद, thank you so much for being part of the show. Saad was one of the first people who saw me online 10 years ago and उन्होंने जो मुझे उस टाइम पे डायरेक्शन दिखाई थी, I feel like a lot of what I am today is because of you. So I really wanted to have you on the show and discuss कि पिछले 10 साल में आपकी जर्नी क्या रही है and आगे आप इस पॉइंट के ऊपर आकर पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं. But before that, थोड़ा सा अगर आप अपना बता सकें कि what are you most passionate about these days, what are you up to, what are you doing? Excellent. Thank you, Muzammil, for inviting me here. Very excited to be here. It's an awesome thing that you have going on here. Thank you. I think, the place that you are at right now is that it's mostly because of you yourself. And the faith that you have shown to your friends and your family and the other people around you. And in that, part, maybe somewhere I had a very teeny 0.1% role to play, but it's definitely you who's the superstar and the superhero. Thank you. But I think that's one of the great things about you as well, that you've been doing a lot of these things. जिसमें I know for a fact, and I've talked to a lot of people who know कि उनकी लाइफ में आपका एक बड़ा मेजर रोल रहा है, but it's all done so unconsciously. कि you're just following your passion, you're doing these projects, and उसके दरमियान में लोग आते हैं, plug होते हैं और चले जाते हैं, but it leaves a mark on them. So what are the things that you're doing? Excellent. Yeah, thank you for asking that. So, I think very important point that you mentioned about the philosophy. That is in fact the philosophy, that to work with people so they can do something that they love. Mm-hmm. And in that journey, I keep telling people जिनके साथ मैं काम करता हूँ, whether those are friends या family या जिस तरह कोई भी project जिनके साथ मैं कर रहा होता हूँ कि it's okay, just let me know कि what is your next step so I can help you get there. So जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं इस वक्त full time I'm engaged with Google. Right. I work on a very very interesting area which is called developer and startup ecosystem. Right. और उसमें हम क्या काम करते हैं कि we work with young people who are trying to use technology in some way. डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दे ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, जिनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं. स्टार्टअप्स वो लोग या वो ऐसे फाउंडर्स होते हैं हु आर अगेन ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो ये मेरा टाइम गुजरता है. आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ डूइंग दिस, एंड एट द सेम टाइम I'm part of different communities. In those communities, I try to work with different individuals. अगर आज से 10 साल पहले आप पूछते कि यार अच्छा ये क्या, इस नौकरी का क्या नाम है या इसको आप क्या कहते हैं, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर. अब इसका थोड़ा सा एक फैंसी लफ्ज़ उन्होंने बना दिया जिसको कहते हैं कम्युनिटी मैनेजमेंट. तो व्हाट आई डू इज़ आई मैनेज कम्युनिटीज़ एंड उसमें आई गेट टू बी अ कोच. अच्छा. एंड दैट इज़ समथिंग आई लव डूइंग. आई इवेंचुअली फाउंड आउट कि कोचिंग इज़ समथिंग आई लव टू डू. आई लव टू मेक पीपल थिंक अबाउट देयर एक्शंस, देयर इंटेंशंस, what they want to do, their ambitions. Right. And to do that at scale basically is community management. कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को you help them think what they want to do, you help them learn new things. So जो मेरा आजकल का passion या ambition या जो मैं कर रहा हूँ उसको community management कहते हैं. Very cool, very cool. So Google के अलावा भी I think you're engaged with a few projects as well here and there. Yes. So what I keep doing is कि मैं साथ साथ different projects होते हैं जिसमें अपनी engagement करता रहता हूँ. कुछ projects जो मैंने start किए थे जो अभी चल रहे हैं, और साथ ही साथ अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कुछ के बारे में मैं आज आपके साथ बात भी करूँगा. सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड आई ट्राई टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़. And I also try to invest in people. I think investing in people is a trait that I do very often. So my the objective is कि मैं कोई I'll try to see a young person and I'll try to spot them and I'll try to help them in their journey. And so working with startups overall, doing different kind of projects. Very cool, very cool. अच्छा, आपने इसमें दरमियान में एक चीज़ बोली कि टेक्नोलॉजीज़ के साथ लोग काम करते हैं, उनको डेवलपर्स कहते हैं, उन्हीं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कहते हैं. आई फील लाइक इट्स पर्टिनेंट टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग मॉडर्न डे में काम कर रहे हैं
वो वही लोग हैं जो कि आईटी का बैकग्राउंड है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है? डू यू थिंक दैट्स ओपन? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि दोनों साइडों पे गई थी कॉन्वर्जेशन. एक तरफ तो हम गए और हमने कहा कि बड़ी टेक्निकल चीज़ है, फिर दूसरी साइड पे हम गए और हमने कहा कोई भी एक आईटी प्रोफेशनल बन सकता है. एंड आई फील लाइक द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? So I think at this stage currently, जो आपकी requirement है to have like IT is very much like an enabler. और ये डिस्कशन मैंने पिछले 15 साल में बहुत दफ़ा की हुई है, तो आई एम जस्ट गोइंग Skim through it, हाँ, एंड आई हैव स्वेव्ड दिस वे और दैट वे. आई थिंक इज एट दिस स्टेज and we have seen that with the technology that we have in our hands is कि it's just an enabler. आपको ज़रूरी नहीं कि आपका IT का background होना चाहिए. I've seen people who don't have an IT का background but who are doing like really good jobs online. It's just that you have to use technology in some way to enable yourself. Right. तो आपको अगर for example और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका बॉस आपको कहता है कि जी मुझे ये चीज़ निकाल के दो, तो आपको गूगल पे सर्च करनी आनी चाहिए. अब गूगल पे सर्च करना आने का ये मतलब नहीं कि आपका आईटी का बैकग्राउंड हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे मैंने सर्च करके वो चीज़ निकालनी है. एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे निकालना है कि इस्लामाबाद में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, राइट? तो ज़रूरी नहीं मेरा आईटी का बैकग्राउंड हो, मैंने बस गूगल पे सर्च करना है, मैंने देखना है कि जी अच्छा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी वेबसाइट है, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के आई हैव टू गेट द वर्क डन. So it's about creating the shortest pathway, making yourself more productive towards the objective at hand. अगर आप वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, then you are technology enabled. अगर आप नहीं कर सकते तो you might need to get there. But definitely IT का background उसमें is not one of the requirements. And I think a lot of things today हमें नज़र भी नहीं आता, but वो इन्हीं skills की basis के ऊपर है. Even someone as simple as a YouTuber, उसने बैठकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी समझी हुई होती है, उसने बैठकर जो है ना वो पूरा प्लेटफॉर्म को भी समझा होता है. ई-कॉमर्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड दे माइट नॉट इवन नो इट, बट दे आर ऑल्सो इन सम फॉर्म और द अदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ही वो ये अपने बिजनेसेस पूरे के पूरे रन कर रहे हैं. सो दीज आर स्किल्स एज वेल, राइट? इसके लिए बैठ कर कोडिंग करना हमेशा ज़रूरी नहीं है. वेरी ट्रू. सो दीज आर स्किल्स. एंड इसका एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ब्लॉग एक बड़ा ज़बरदस्त पब्लिश हुआ है जिसको उधर इसको डिफाइन करते हैं. दे कॉल इट डिजिटल कोशेंट. सो डिजिटल कोशेंट ये है कि जी अच्छा बहुत हाई टेक्निकल लेवल पे यू वुड गो इनटू कोडिंग, यू वुड गो इनटू मशीन लर्निंग. फिर उससे एक नीचे लेवल है कि जिधर अच्छा आप ये तो नहीं कर सकते लेकिन आप कोई बेसिक लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं या कोई ई-कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं. फिर उससे नीचे वाला लेवल ये है कि अच्छा यार आपको ईमेल करनी आती है. फिर उससे नीचे लेवल ये है कि आप जो है आपको यू कैन ट्रांसफर मनी लाइक जैज़ कैश और ईजी पैसा से. उसकी भी डिजिटल स्किल चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए किस तरह होगा, क्या होगा. तो दे हैव काइंड ऑफ डिफाइंड दिस इन डिफरेंट स्टेप्स. एंड पाकिस्तान में भी अभी यही होता है कि अगर आप जाके देखें सो डिजिटल स्किल्स के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड लेवल्स हैं और डिफरेंट लोग उन डिफरेंट लेवल्स में हैं. और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक लेवल पे आते हैं, फिर वो जाते हैं ऊपर, फिर ऊपर जाते हैं. एंड दैट्स हाउ दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. वेरी कूल. एंड आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ये एक्सप्लेन कर दिया. बिकॉज होता क्या है कि कभी कोई व्यूअर होता है जो कि डेवलपर होता है या वो प्रॉपर लाइक कोडर होता है एंड वो कहता है कि एक डिजिटल स्किल्स ये नहीं होती जो मैं कर रहा हूँ, वो डिजिटल स्किल्स हैं. सो उस सेंस में क्वाड्रेंट्स हैं एंड जहाँ पे जो लाइक करते हैं वो उस हिसाब से वो दे कैन यूज़ देयर स्किल एंड डू व्हाटएवर दे वांट एंड वो आगे जा सकते हैं इफेक्टिवली. यू डोंट हैव टू, इट्स नॉट अ कंपटीशन. इट्स नॉट अ कंपटीशन एंड इट्स नॉट अबाउट गेट कीपिंग. मतलब जो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक लफ्ज़ यूज़ भी होता है हमारी इंडस्ट्री में और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा भी है कि ये नहीं कि आप किसी को कह सकते हैं यार इसको तो नहीं ये यूज़ नहीं कर सकता, या everyone has access to devices, everyone can learn. And it is your moral obligation to make someone learn कि यार वो चीज़ खुद कैसे कर सकते हैं. तो ये वो नहीं है जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि जी अच्छा सैलरी आनी है तो एक बंदे फाइनेंस के बंदे ने चेक लिख के देना है और वो जो है ना गेट कीपर है कि जो ये सैलरी नहीं आ सकती जब तक ये चेक नहीं लिख के देगा. अब इट्स अबाउट हेल्पिंग समवन अंडरस्टैंड कि हाउ दे कैन मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम्स दैट वी हैव एंड एनीवन कैन लर्न न्यू थिंग्स. राइट. एक्सेलेंट. अच्छा, सो I'd like to take the conversation towards Gen Z, right? I remember back in 2010s 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते थे जो कि एक sort of अपनी जो बनाई हुई दुनिया होती थी, जो उनके पेरेंट्स ने बनाई, जो सोसाइटी ने बनाई, उससे ज़रा हटकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे. एंड आई हैव सीन अल्हम्दुलिल्लाह से नाउ जो अभी इस वक्त नौजवान जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम ऑनलाइन एज वेल. आई थिंक आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 50 आर एक्चुअली लुकिंग बियॉन्ड देयर कन्वेंशनल सेटअप
or they're trying to find new things. First of all, what has your experience been with the Gen Z? And secondly, how different do you see them versus, you know, when you were, let's say, 22 years old or is tarah se? Perfect. Very, very, thoughtful question and something that I've reflected on a lot as well. और Gen Z की मैं अगर if I can recall उनकी जो डेट ऑफ बर्थ या वो जो ईयर्स होते हैं, आई थिंक इट्स 1996 and beyond. हाँ, 1996 एंड बियॉन्ड एंड गोज अप टिल 2000 और समथिंग, 2008 और समथिंग. उसके बाद फिर वो एक नई स्टार्ट हो गई अभी रिसेंटली आ जाती है वो. मैं इसलिए चाह रहा था जो ऑडियंस सुन रही है खास तौर पे दे कैन नो अबाउट एग्जैक्टली के जेन जी और मिलेनियल वाला फ़र्क क्या है. आई थिंक जेन जी में, एंड आई रिफ्लेक्टेड अ लॉट ऑन दिस, जेन जी में जो एक सबसे बड़ा मसले से शुरू करूँगा फिर सोल्यूशन पे जाऊँगा. मसला जो मुझे लगता है, एक चैलेंज जो मुझे लगता है, वो है अर्जेंसी. राइट. सो इफ़ यू लुक एट द होल जेन जी मॉडल, या जेन जी मॉडल नहीं, सॉरी, जेन जी की जो पूरी जनरेशन है उसको आप देखें तो इट्स बेस्ड ऑन अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. राइट. उस अर्जेंसी में क्या है कि यार अच्छा अभी टेक्स्ट आएगा, अभी रिप्लाई करना है. राइट. अभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैंने इस पर कुछ कहना है. राइट. अभी इसने कुछ कर दिया तो मैंने इसको कैंसिल करना है. कैंसिल कल्चर. राइट. अभी इसने ये अच्छा कर दिया है तो अच्छा मैंने लोगों को बताना है. So it's very reactive, if I could just sort of. It's very reactive. It's based on कि यार अगर मैं इसका अभी पार्ट ना बना अभी फॉरन राइट अवे तो मैं शायद मिस आउट हो जाऊंगा, जिसको आप फिर वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं. राइट. तो कंपेयर टू मिलेनियल्स, जेन जी इज़ वेरी डिफरेंट. इसका कुछ फ़ायदा है, इसका कुछ नुकसान है. Right. इसका फ़ायदा ये है कि फ़ायदे पे आता हूँ, पहले नुकसान ज़रा देखता हूँ. नुकसान इसका थोड़ा सा ये है कि जेन जी वॉन्ट्स टू डू काइंड ऑफ जॉब्स जिधर उनको फ़ौरन इम्पैक्ट नज़र आए. Right. कि यार अच्छा रातों रात अच्छा पता नहीं ये कंपनी जो है ना बड़ी हो गई है. This man left his job and now is a billionaire overnight. Right? So इस तरह की जेन जी काइंड ऑफ एस्पायर्स कि यार ये हो जाए. हाँ. वो उस ग्राइंड से नहीं गुजरना चाहते कि यार अच्छा नहीं इस पे मुझे 10 साल लगेंगे तो मैं यहाँ पहुँचूंगा. Right. They just want to see things happen, and you will see this reflect in everything from politics to social media. They just want to see Instant things change, instant change कि यार instant कुछ हो जाए. And I also feel कि they get really disappointed if it doesn't happen. That's exactly my point कि उनको अगर वो ना हो हाँ. तो वो, और इसीलिए मैंने देखा है जेन जी में काफ़ी ऐसे some young people that I've been mentoring as well, वो बहुत जल्दी जॉब चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको वो उसमें जो इम्पैक्ट वो चाहते हैं ना वो नज़र नहीं आता. Right. So that's the urgency creates a little bit of a challenge working with Gen Z. And साथ इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये कि Gen Z is much more open to experimentation as compared to millennials and उनके पीछे जो जनरेशन थी. क्योंकि Gen Z अब ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा एक पक्की नौकरी चाहिए या एक पक्की अच्छी प्राइवेट कंपनी. Gen Z कहता है कि यार ओके, आई एम वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग. Give me something that keeps me happy. I want to contribute in the world, impact. I want to make money. ये वो सारा कुछ मिक्स होना चाहिए. Right. तो Gen Z का फ़ायदा इधर है कि if you want to hire for a startup, if you want to hire for a कोई आप चीज़ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो Gen Z से आपको फ़ौरन सोल्जर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे यार yes, I'm ready to jump ship with you. Yeah. लेकिन चैलेंज फिर वही है कि वो अर्जेंसी अगर आपने उनको ना दिखाई तो they will move on very fast. Yeah. And that's what I think about Gen Z. Yeah, and I feel like कि चले move on तो is one thing. मुझे जो होता है ना कि डर लगता है वो ये कि they tend to get very cynical very fast as well because they're just like screw the system. कुछ नहीं हो सकता. True. And this is why I have there is a concept called grey thinking. So grey thinking ये कहता है कि अगर आप it's okay to not form an opinion. Right. Which is very anti-Gen Z. Yeah. And this is something I practice. There are things about there are ideologies जिस पे मैंने अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि मैं 5 साल इसके बारे में रिसर्च करूँगा, इसको देखूँगा, लोगों से मिलूँगा एंड देन आई विल कम टू एन ओपिनियन. जेन जी कहती है कि मैंने आज रात ये आर्टिकल पढ़ा या आज रात मैंने उस बंदे को सुना तो ये जो है ना बस सिस्टम ख़राब है, ये चीज़ नहीं हो सकती. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर नाउ. दिस इज़ वेरी डेंजरस एज वेल. और इसमें मेरा लास्ट एक जो आई थिंक जेन जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग और ग्रे थिंकिंग और इंक्यूबेटिंग. आइडियाज़ वर मेंट टू बी इंक्यूबेटेड इन योर हेड. इसीलिए मुझे लगता है कि जेन जी में ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग होंगे who are able to differentiate the noise and who are able to incubate. ये वो लोग हैं जो despite the flow of information, they take their time. इन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया कि हमने फ़ौरन जंप नहीं करना,
हम आराम से सोचेंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है. एंड आई थिंक अगर मैं इसकी तशबीह दूँ ना हमारे टाइम के ऊपर वर्सेस नाउ, तो उस टाइम पे ना वो जो लोग होते थे, गूगल करने का भी ना एक तरीका होता था. एक बंदा होता था जो कि जाता था और जाके फर्स्ट लिंक को कभी भी नहीं क्लिक करता था. वो जाता था जाके पहले 2 पेजेस को समझता था, देखता था, फिर कहता था अच्छा अब मैं ये निकाल के असाइनमेंट इस तरह छापता हूँ. और एक होता था जाके पहली लिंक क्लिक करता था, कॉपी करता था और निकाल देता था कि भाई मैंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया. सो आई थिंक सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है कि अगेन आपने सक्सेस का जो मेट्रिक बताया है कि यू नो बी अ बिट मोर पेशेंट and do your due diligence a bit more to actually be successful. And I think that's a very good advice. Acha, so you're 32 now, and आपने एज अपनी छुपाई भी तो नहीं थी? नहीं चले. So you're 32 now, and you know I just turned 30. जब मैं 21-22 था, so there were 2 feelings primarily जो मेरे साथ attached थी. एक फीलिंग ये थी कि जब मैं बहुत खुश होता था तो मुझे लगता था कि यार द वर्ल्ड इज़ माई ऑयस्टर, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली होपफुल एंड आई वुड थिंक एंड आई वुड बिलीव, बिकॉज ख़ासकर जब आप इस एनवायरनमेंट में फिर रहे होते हैं तो आप बिलीव अगर नहीं करते तो आप कुछ सक्सेसफुली अचीव कर भी नहीं सकते. आई वुड जेन्युइनली बिलीव कि यू नो जान मारेंगे, टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, जो कि उस तरह से नहीं आया. सीखा हमने 8-10 साल के बाद कि यू नो जो इमेजिन किया था उस तरह से नहीं आया बहुत कुछ आया लेकिन उस तरह से नहीं आया. और ऑल्टरनेटिवली जब डिप्रेस्ड होते थे तो ये सोचा करते थे कि पता नहीं ये जो कर रहे हैं इससे कुछ होगा भी कि नहीं, यू नो ये नई चीज़ें कर रहे हैं. लॉट ऑफ व्हाट यू नो वी वर डूइंग वाज exploring things out in the open that had no definitions, that had no money attached to it, that did not have an industry. And while we were seemingly successful in terms of you know people talking about it or you know getting the right network and उस तरह की चीज़ें तो हमने gain की, but जो essentially जो society आपके parents मांगते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही थी. You'd second guess yourself, you'd be really worried कि अच्छा पता नहीं what if it fails. So failure, fear of failure जो था ना वो बहुत strong था. And alhamdulillah now looking back I'd say कि you know that was a मतलब वहाँ पर improvement है. It wasn't as bad as I had imagined. So I'd like for some sort of a reflection on your part कि at 32 if you look at the 22-year-old Saad Hamid, then I think that's when you graduated from Bahria? Yes, almost 10 years back. Yep. Yeah. And then you, I think for the first part you got into the TED family. So yeah, I was doing that as a volunteer. आज Already तक during it's been college? 11 years actually. College से ही कर रहे थे? कॉलेज से ये आई स्टार्टेड द TEDx इस्लामाबाद टेड टॉक्स जो हैं वो हमने स्टार्ट की थी. 2010 वाज द फर्स्ट इवेंट. यस राइट. एंड वहाँ से सो यू नो 2010 and 2020 what is your reflection for the past 10 years in terms of how you perceive you know Pakistan, how do you perceive the society, how do you perceive growth? सो आई थिंक इसमें एक तो जो मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर द ईयर्स आई यूज़ अ वर्ड फॉर माई सेल्फ विच इज़ अ हाइपर ऑप्टिमिस्ट. राइट. तो आई ऑलवेज बिन अ हाइपर ऑप्टिमिस्ट. हाइपर ऑप्टिमिस्ट को आप जब भी कोई चीज़ पूछेंगे ना कि जी कैसी परसेप्शन आपकी ये वो रही है, वो आपको एक ही जवाब देगा. और ये कुछ ट्रेट है. आई हैव सीन दिस ट्रेट विद सम अदर हाइपर ऑप्टिमिस्ट. वन ऑफ देम आई कंसिडर आवर प्राइम मिनिस्टर टू बी अ वेरी बिग हाइपर ऑप्टिमिस्ट एज वेल. एंड वी आर वेरी लकी बिकॉज वी वर born on the same day. 5th October is you know his birthday as well, might be. So it's right. kind of like you know maybe Libras have a certain way of thinking maybe. Yeah. लेकिन I genuinely believe कि एक तो मैं तो खुद हाइपर ऑप्टिमिस्ट हूँ. मैं आपको साफ अभी बता देता हूँ कि मेरी उस वक्त भी उम्मीदें काफ़ी हाई थी, मेरी आज भी उम्मीदें काफ़ी हाई हैं. ठीक है. नाउ द रियलिटी चेक Yeah. कि क्या हुआ. इस पे बड़ी मुझे फ़नी एक वाक़या याद आ रहा है. अभी रिसेंटली एक हम गैदरिंग में बैठे हुए थे दोस्त, और वहाँ पे किसी ने कहा कि यार मेरा वो प्रोजेक्ट बस यू नो आई वाज देयर, आई वाज ऑलमोस्ट देयर होने लगा था, लेकिन आई वाज ऑलमोस्ट देयर. ही यूज्ड द वर्ड ऑलमोस्ट देयर एंड आई जस्ट हैड अ रिफ्लेक्शन एंड आई सेड के इज़न्ट दैट द डायलेमा. कहता क्या, वो उसको समझ ही नहीं आई मैं क्या बात कर रहा हूँ. मैंने कहा इन पाकिस्तान वी ऑलवेज सीम टू बी ऑलमोस्ट देयर. Yeah. And everyone started laughing and then they were like, wow. Yeah. कि that's actually true. Yeah. Because हमें जब भी आप पूछेंगे ना आज से, तो आप जब निकाल लें साल जितने भी लोगों से, तो we were almost there, right? Yeah. I also think, I don't know that's a good thing or a bad thing. I think we will always be in a state of being almost there. Right. Which is to some extent good, because जब तक हमें
हम हमेशा बहुत करीब होंगे उस सक्सेस के जिसके पास हम जाना चाह रहे हैं, विच मीन्स दैट वी आर ट्राइंग. Right. ये नहीं कि हम ट्राई नहीं कर, वी आर नॉट लाइक वन ऑफ दोज कंट्री जो कहें यार अच्छा इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया. सी वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी डिड इट, दैट्स व्हाई वी गॉट देयर. Yeah. But because of systems, because of policies, because of decisions, because of karma, Right. because of fate, luck, Yeah. we are just not there yet. Yeah. And I think it will take us a lot of, and if you look at this, मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूँ कि आप हमारी क्रिकेट टीम को भी देख लेना. आप मुझे पाकिस्तान में कोई चीज़ उठा के दें एंड उसके सामने मैं लगाता हूँ वी आर ऑलमोस्ट देयर, एंड आप देखें कि वो सच है कि नहीं है. That's actually true. That is You true. look at the cricket team, you look at anything, we're almost there. Yeah. It's just that we are maybe right now we don't have the confidence, we don't have the systems, we don't have the team to be कि नहीं, this time we are not almost there, this time we are there. Yeah. And वहाँ पे जो आखिरी एक उम्मीद की किरण बचती है वो है हमारा यूथ. Right. So in terms of the youth, we are there. Right. We have, I'm not saying कि वो क्वालिटी ऑफ यूथ क्या है या वो कैसी स्किल सीख रहे हैं क्या, लेकिन जो यूथ का बल्ज है दैट इज़ देयर. बड़े अरसे से हम कह रहे हैं अच्छा पाकिस्तान की यूथ है वो अंडर 60%, अंडर 30, ये वो सारा कुछ. नाउ इट्स देयर, इट्स कनेक्टेड, इट्स अ यूथ दैट इज़ ऑन द कस्प ऑफ मेजर अपॉर्चुनिटीज़. Right. अगेन मे बी इट्स ऑलमोस्ट देयर इन सम वेज, लेकिन वो एक है, उसका क्या होगा, वो क्या करेंगे आगे, दैट आई डोंट नो येट. Right. बट वन थिंग आई नो, एंड अभी मैं अपने प्रोजेक्ट का भी जिक्र करूँगा, समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन फॉर द यूथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू remote work. But I think youth has a lot of potential and we've seen that. So पिछले काफ़ी अरसे में जो हमें startups और ये जो successes नज़र आई हैं वो इसीलिए नज़र आई हैं. I am very happy about it. Right. So I think inshallah we I will mean, so be you're there. hopeful, but I'll play the devil's advocate. Okay, here, yeah. Right. And we've been hopeful for 10 years. Definitely the pyramid has sort of been created in a way कि पहले अगर 10 लोग थे तो आप फिर दरमियान में 1000 हो गए और अब 10,000 लोग हैं जो होपफुल हैं. बट अगेन आपकी वो ऑलमोस्ट देयर वाली बात ही है कि like will we actually realize the potential of the youth? क्योंकि मैं हमेशा ये बात सुनता हूँ कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. Even the Prime Minister, when he was doing his, everything, he was like, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा potential है, बहुत ज़्यादा talent है. Do you think realistically will we be able to convert that talent into actionable productivity? Second of all, in a reflection, and I'm not trying to say this in a negative way, कि नहीं ये आप कैसी बात कर रहे हैं. I just want a reflection on that. Do you see the youth today? They're definitely more digitally connected. So I remember back in the day, when I would see internet, I would see internet as this extremely productive thing, because of the way that I use the internet, I thought everybody would use the internet in a similar way. And today, when I see कि majority लोग जो हैं वो जाते हैं internet के ऊपर, वो कहते हैं कि, and I'm talking about the mass market, right? Yeah. So वो कहते हैं कि internet तो पता नहीं, but Facebook and WhatsApp. Yeah. Right. And that unfortunately, like जो internet के tools थे, Wikipedia का नहीं पता लोगों को, Google करना नहीं आता लोगों को, unfortunately. And then I see a lot of educated people as well जो कि they're going towards areas, just non-productive areas of internet पे वो चले गए, लेकिन somehow they're unable to utilize basic things. जैसे आप skills की बात कर रहे हैं. So yes, the market compared to पहले has grown, but I also see कि जो rate of growth है जो हमने project की थी, I feel like कि वो उस तरह से नहीं है. What do you think about that? So I think एक तो again being a hyper optimist, benchmarking is something जो कि मैं benchmarking पे ज़्यादा इसलिए believe नहीं करता कि benchmarking also is very relative. कि मैं अपनी अच्छा जी पाकिस्तान की ये situation है, वियतनाम देखो, इंडोनेशिया देखो, या इस तरह उनके तो यूथ ये कर रहा है. आई थिंक वो थोड़ी सी गलती होती है जब आप लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं. आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, एंड आई गिव यू एग्जांपल्स नाउ कि जी क्या चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई. लेट्स लुक एट एब्सोल्यूट टर्म्स. इज़ पाकिस्तान नॉट द 4th largest freelancing market in the world? It is. Right. Absolute terms में it is there. Right. वो है, वो एक international companies like Payoneer, they vouch for it. That's why they have presence here as well. तो ये है.
Right. आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं अच्छा पोटेंशियल रियलाइज करेगा, हो गया रियलाइज पोटेंशियल, गया, चौथे पैसा नंबर आ पे रहा आ है, गया, हाँ, काम पैसे हो रहा है, आ गए, पैसा आ काम रहा है। हो गया, राइट राइट। और अगर पैसा भी देखें तो ईयर ऑन ईयर हैज कॉन्स्टेंटली ग्रोन। यस ओवरऑल जो उसका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो बिल्कुल। जितने ब्लैंकेट में आ रहे हैं। आई बिल्कुल। डोंट नो कि उसका एग्जैक्टली वो इन्फ्लेशन और ये वो एडजस्ट करके कितना बन रहा है, लेकिन नहीं, but ओवरऑल नंबर जो- फ्रीलांसर्स जो- का इंक्रीज कर अगर रहा है। आप पाकिस्तान के टर्म्स में देखें तो इन्फ्लेशन आप जो भी लगाएंगे डॉलर टर्म्स में आता है ना। हाँ हमें तो हाँ आईटी की फिगर डॉलर टर्म्स में मिलती हैं, तो हाँ। इफेक्टिवली वो डॉलर की जो हालत हुई है तो वो तो बेहतर इन्फ्लेशन से बेहतर ऑफ ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। वो Right. एक हो गया। फिर आप देखें स्टार्टअप्स ने जो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल रेज की, Right. देन वी हैव स्टार्टअप्स लाइक बाइकिया विच वर एबल टू रेज सेकंड सीरीज बी इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा फॉर द कंज्यूमर एक्सप्लेन करेंगे सीरीज बी से क्या मतलब है? सीरीज बी का ये कितना सिंपल अल्फाज में सीरीज बी का ये मतलब है कि जी अच्छा उन्होंने पहले एक इन्वेस्टमेंट रेज की। सो जब भी कोई एक स्टार्टअप होता है वो डिफरेंट राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज करता है जी। पहले हो गया एंजल इन्वेस्टर, फिर हो गया सीरीज ए, फिर हो गया सीरीज बी, फिर हो गया सीरीज सी। सीरीज अगला- बी किस लेवल पे आता है? मतलब आप इसको इस तरह समझ लेंगे बाइक या तीसरा लेवल कह लें आप, तीसरा ठीक लेवल, है। पहला दूसरा तीसरा। ठीक तीसरे लेवल पे आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपने पहले दो लेवल को क्रॉस नहीं कर लिया, जब आपकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस आपको प्रॉपर किसी ने चेक नहीं कर लिया। ठीक है। तो जब उन्होंने किया चेक, जब उन्होंने दिखाया कि अच्छा नहीं यार ये मार्केट तो ग्रो कर रही है, Right. लोग ये कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, फिर उन्होंने किया। Right. क्या यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं ऑफ कंपनीज लाइक करीम, राइट। जिनके यहाँ पे बेस है, जिन्होंने एग्जिट किया बाय एक्विजिशन। क्या यहाँ पे एग्जांपल नहीं? यू शुड लुक अप दिस कंपनी कॉल्ड क्विकसेल। मतलब द स्टोरी ऑफ वकार Yeah. एक्स फास्टियन, या brilliant story. The guy made a company out of nothing, got acquired by Epic Games जो Fortnite game बनाती है, and now you know again the global वर्किंग है। एंड मजेदार बात ये है, अगर आप सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी देखें ना, अगर उनको किसी ने एडवाइस किया होता है, उन्होंने कहना था भाई तू पाकिस्तान में ये बेच के दिखा दे मुझे जो वो काम कर रहे हैं। true. Right, but he was able to do that here, and he was able to again like not only have the clients but he get acquired, now work with the biggest people in the world while sitting in Pakistan. And I think again that's a great story. Companies like Affinity, companies like Yeah. Keep Trucking. Yeah. So ये realities है. So there are things that have been done. अब yes, उसको अगर आप थोड़ा सा relative term में कहेंगे तो आप कहेंगे यार इंडोनेशिया ने तो देखो 10 साल में जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो आके अम्मी कहती हैं कि देखो फुफो के बेटे ने तो जो है ना वो ए ग्रेड ले लिए हैं, तुम अभी बी प्लस पे जो है ना वो बैठे हुए हो। तो फिर आप कहते हैं नहीं बनना मैंने फुफो का बेटा, राइट। सो एब्सोल्यूट आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव कि लेट्स लर्न फ्रॉम व्हाट एब्सोल्युटली द कंट्री इज केपेबल ऑफ। अगर फ्रीलांसिंग अच्छी कर रही है तो यार फ्रीलांसिंग इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, एंड दिस इज समथिंग आई वाउच फॉर कि यू नो अब हमने सीख लिया है कि पिछले 10-15 साल में व्हाट वर्कड, नाउ इज द टाइम टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड दैट्स वाई मैं खुद भी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ जो कि ज़्यादातर बेस्ड हैं अराउंड आइडियाज दैट हैव वर्कड। राइट, एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक टू मेंशन हियर इज वेल कि जब हम डॉलर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर डॉलर डिवैल्यूएशन की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो हमें हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिलती है, और डॉलर महंगा हो गया और अब हालात बुरे हो गए। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि डॉलर अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक्स का, जैसे बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और डॉलर के सस्ता रहने से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और महंगा रहने से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, राइट। एंड जब डॉलर आर्टिफिशियली सस्ता रखा गया तो हमारे सबसे बड़े जो जिन लोगों को नुकसानात हुए थे वो आपकी एक्सपैट कम्युनिटी थी, जो कि अपने घरों में पैसा भेज रहे थे और उनके बच्चे बेचारे गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे थे। हालांकि अगर उनको बेहतर रुपी वैल्यू पे मिल रहा होता तो शायद उनके बच्चों की सोशल मोबिलिटी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर होती है, पावर स्ट्रक्चर उस हिसाब से एक्सपर्ट्स का बेहतर होता। इसी के साथ साथ आई थिंक आईटी इंडस्ट्री एक बहुत मेजर हिट पड़ी थी, आईटी एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, क्योंकि अगेन आप जितना भी लोगों को कन्विंस कर लें, जब तक पैसा नहीं आता ना, like I think money is the biggest motivator anywhere in the world. Very true. And when you see your friend earning, let's say आप बैठे हुए अपने स्टैंडर्ड काम के ऊपर, आप प्रॉपर्टी, पहले वाला टाइम प्रॉपर्टी डीलर्स का था ना, तो आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आप 4-4, 5-5 लाख कमा रहे हैं, तो फ्रीलांसर 2-2.5 लाख कमा के आखिर में कहेगा यार मैं फाइलें बेच लेता हूँ, काम आसान है ज़्यादा। अगर वही चीज़ फ्लिप हो जाती है और आपका वो फ्रीलांसर फ्रेंड 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन सडनली 5 और लोगों में बढ़ जाएगी। पोपो भी बोलेंगी कि यार वो कामरान का बेटा जो है वो देखो तारा कितना अच्छा कमा रहा है, तो तू भी कोई स्किल सीख ले जाकर। बिल्कुल सही है, यस, राइट। सो आई फील है कि नाउ ये भी एक फ़र्क आया पिछले 2 सालों में कि जो आपने डॉलर को फ्री फ्लोट किया उसकी वजह से जो स्किल बेस्ड मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी है उसमें आई फील है कि नाउ वी आर बेटर प्लेस्ड एज अ कंट्री। वी कांट कंपेयर विद इंडोनेशिया एंड इंडिया एंड अ लॉट ऑफ दोज कंट्रीज बिकॉज दे weren't, their policies weren't tailored towards our IT sector or our digital sector.
And again, I'm not saying कि पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ perfect हो रहा है डिजिटल के Right, हिसाब से, yeah, you know, with TikTok ban and वो चीज़ें, I personally don't agree with that. But I was basically saying कि, you know, now I feel like if 5-6 years पहले जो हालात थे, अब मुझे लगता है personally कि अब उससे बेहतर हालात हैं. So I think यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट वही है about absolute terms and understanding, and this is very interesting that you mentioned. I was एक सेशन पे मैं था अभी recently with Tania Idris, who was the ex SAPM to the Minister on Digital Pakistan, और हम वहाँ पे यही बात कर रहे थे कि I think now is the time that let's learn what worked for Pakistan. Right. देखिए कोई भी मार्केट तब आप उसको स्टडी करते हैं, आप देखते हैं क्या चीज़ है जो इस कंट्री ने बहुत अच्छी की जो चली, तो हम देखते हैं कि यार हम सिंपल आईटी को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में व्हाट इज़ दैट वर्क, लाइक फ्रीलांसिंग वर्क, लेट्स मेक फ्रीलांसिंग इंक्यूबेटर्स, Right. और समथिंग लाइक रिमोट वर्क, लेट्स स्टार्ट skilling people into remote work. Right. So my focus is let's try to find what worked and replicate that instead of having moonshots. Although moonshots भी ज़रूरी है, moonshots क्या होती हैं, innovative ideas. Right. लेकिन जो चीज़ चली है उसको यूज़ करके आगे बनाते हैं चीज़ें. राइट. एंड इसी के साथ साथ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि कोविड के टाइम पे अब अगेन आपने क्योंकि रिमोट वर्क कर वो किया, और आई हैव सीन के फेसबुक अपने एम्प्लॉइज़ को कह रहा है कि घर बैठे हैं आराम से सुकून करें. काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ को, वो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ को कि उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है, द फ्यूचर परमानेंटली वो घर बैठेंगे. अच्छा, आपको क्या लगता है कि इज़ दिस गोइंग टू, मुझे पर्सनली ये लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली एक्टिवली गोइंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़. क्योंकि हुआ क्या कि जी पहले आपको याद होगा एक ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट आके बड़े हैवी किस्म की हायरिंग करता था पाकिस्तान में. पाकिस्तान से उठाता था, दुबई जाते थे इंटरव्यूज़ के लिए और फिर बाहर जाते थे लोग. फिर वो वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी हुई, H1 मिलना मुश्किल हुआ, फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, कनाडा बुला लेते थे, फिर अमेरिका आ जाते थे. अब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि नहीं इस तरीके से हायरिंग हो रही. जनरली या तो इंडिया से कर लेते हैं, या अगर वो करते भी हैं तो वहीं से स्विच कर रहे होते हैं लोगों को. बट नाउ आई फील लाइक कि जो ये बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, एक तो ये क्या हमने पोस्ट कोविड हमने ये देखा कि दुनिया की इकॉनमी गिरी, लेकिन टेक कंपनीज़ ग्रो कर ही रही हैं एब्सोल्यूट स्टॉक्स पे अगर आप देखें. And then now with that growth and with the future of 5G and the digitization of now our lives, पहले तो ये था ना कि technology was in certain areas वो हो रही थी, अब तो हर जगह पे we are expecting कि next decade के अंदर, चलें पाकिस्तान में ना भी हो तो developed world के अंदर होगा. उसके लिए ज़ाहिर है आपको अब लोग चाहिए जो कि हर चीज़ मैनेज करें, in the age of data. Now with remote being normalized and structures coming in place where these big companies will be able to work with people who maybe just be hired remotely, and then they can stay remote and then they can work remotely without ever having to come to the office. Do you think that's going to increase opportunities in countries like Pakistan and India? So again, very good point on कि कोविड के बाद कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं. I think by any standard, remote work is the future of work. And I feel like that's what you're doing as well, right? Yes, and मैं खुद भी यही कर रहा हूँ, मतलब खुद भी मैं रिमोट, जिस तरह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन दैट, मैं खुद जो है, मेरा बॉस सिंगापुर में बैठता है, मेरी टीम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठती है. माई वाइफ्स बॉस सिट समवेयर इन कनाडा and her team is spread across different time zones. Yeah. तो remote work बल्कि future of work नहीं, मैं कहूँगा remote work is the present form of work now. Right. आपने लेकिन जो दूसरा सवाल पूछा ना कि वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर मेरा जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा कि will it give opportunities to people in developing countries. And इसमें मैं एक बस वेरिएबल ये ऐड करूँगा because you are a cheaper resource at the end of the day compared to, because living standard है ना, बिल्कुल है. अमेरिकन है तो वो शायद $1 लाख पे डिमांड एंड सप्लाई है, वो $1 लाख पे एक्सेप्ट करेगा. आप शायद $40,000 जिसको पाकिस्तान में मिल रहा है उसकी तो चांदी लगी हुई है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. राइट. सो उस हिसाब से बिकॉज इकोनॉमिक सेंस मेक करता है. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो यही कह रहा हूँ कि येस इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को खुद लेनी पड़ेंगी. राइट. विच इज़ एक्चुअली माई पॉइंट एज वेल. जो आजकल मैं एक साइड पे प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड रन कर रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा जो एक मुझे मसला है इस वक्त वो ये है कि समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट. राइट. कि यार वाई आर पीपल हु आर बेस्ड इन पाकिस्तान, who are based in cities जिधर उनको कोई इस तरह का मसला भी नहीं है. मतलब कि अगर तो मैं हूँ किसी सेकंड या थर्ड टीयर सिटी में, जिधर बिजली ना आती हो, पानी ना आती हो, फिर मैं कहूँ अच्छा चलो मैं चला जाऊँ कहीं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची. लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ जिधर रिलेटिवली चलो आबो हवा भी अच्छी है, थोड़ा सा जो है ना लिविंग लाइफ स्टाइल इज़ अ लिटिल मे बी बेटर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर सिटीज़, तो आपको अगर इसका कोई मसला नहीं अगर आपको लाइफ स्टाइल का,
अगर आपको जो है ना आप फिरने भी निकल सकते हैं, आप मैकडोनल्ड भी जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी, यू आर सेफ। और आप अगर फिर भी किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, तो दैट आई थिंक इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। व्हाई? सो व्हाट आई वांट टू डू इज नाउ आई वांट टू ब्रिंग इंटरनेशनल डॉलर्स टू पाकिस्तान। राइट। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बैठा हर वो नौजवान जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के पढ़ रहा है, वो ऐसी स्किल सीखे कि जिससे वो रिमोटली दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ काम कर सके। क्यों? क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि यार पाकिस्तान में अंदर से पाकिस्तान में पैसा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि बाहर से कंपनीज पाकिस्तान में पैसा लेके आए। वो किस तरह होगा? वो होगा थ्रू रिमोट वर्क। मैं नहीं वेट करना चाह रहा कि कोई बड़ी कंपनी पेपाल आएगी यहाँ पे ऑफिस बनाएगी। मैं चाहता हूँ कि कल नौजवान निकले, परसों उसको जॉब ऑफर मिले, और तरसों उसके बैंक अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस आ रही हो। इज इट पॉसिबल? यस। हैज इट बीन डन? यस। हैज इट बीन डन ऑन स्केल इन पाकिस्तान? नो। दैट इज व्हाट आई, छोटे ना किसी एक बंदे ने ना हैक निकाल लिया, कॉन्टैक्ट के थ्रू एक नौकरी कर लिया, वो खामोशी से बताता नहीं है किसी को मैं काम कर रहा हूँ बस रात को बैठकर। यू नो लाइक नोबडी हैज बीन एबल टू, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि अगर एक मॉडल एग्जिस्ट करता है और लोगों ने उसको कर लिया हुआ है, तो व्हाई कांट दैट बी एम्यूलेटेड एंड converted, like McDonaldized in a way कि वो supply chain बन जाए पूरी। This is the $1 billion opportunity for Pakistan in terms of money। कि यार आपके पास यंग टैलेंट है, उसमें आप स्किल्स ले सकते हैं, कोडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। आई थिंक इसमें मुझे अपनी जो वाइफ है उसकी स्टोरी बड़ी फैसिनेट करती है। मुझे ज़िंदगी में आज तक लिंक्डइन से नौकरी नहीं मिली, उसको ज़िंदगी में आज तक सारी रिमोट जॉब्स जो मिली हैं वो मिली हैं लिंक्डइन से। नाउ शी रिसेंटली गॉट अ जॉब विद द शिकागो बेस्ड कंपनी। And it's fascinating when you look at her lifestyle कि यार अच्छा she's based here and वो अपनी मर्जी से, we have माशाल्लाह 2 kids as well, तो वो कैसे फैमिली भी मैनेज कर लेती है, काम भी मैनेज कर रही है, लाइफ भी अच्छी चल रही है। अब हम सोच रहे हैं एंड वी लिव लाइक डिजिटल नोमैड्स। अब हम सोच रहे थे अच्छा यार हफ्ता चलते हैं नथिया गली, वहाँ से एक जोन की डिवाइस ले लेंगे, वहाँ से बैठ के काम करेंगे। एंड वाई कैंट a lot of Pakistanis do this? यही तो मुझे होता है कि यार हम क्यों कहते हैं अच्छा हमें इधर नौकरी मिले हम जाएं, जब प्रूव कर दिया है कोविड ने कि रिमोट वर्क इज़ द फ्यूचर। कंपनीज लाइक करीम, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ये वो सारी, तो वाई आर वी नॉट क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी? इसीलिए वो जो मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता रहा था, देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन कॉल्ड जादू जॉब्स। Oh, very interesting. And the Sounds premise magical. and the premise of that is कि you know finding a job with good skills should be magical. It should be easy. आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार अच्छा आप 4 साल या 5 साल 6 साल की नौकरी करें, फिर ढूंढें, फिर पेपर वर्क करें। You should be able to do a 1-year long course, right? And you should be able to find your job and work with any company in the world. Yeah, because if you have the required skill, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि lot of people will expect and do expect, entitlement एक है unfortunately हमारे लोगों में, कि हम expect करते हैं कि यार ठीक है अच्छा मैंने अब ग्रेजुएट कर लिया तो अब मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, मिलेगी हाँ, right? It will eventually depend on कि whether you can actually do the job and provide value to someone. But I feel like कि जो लोग करते हैं ना value provide, उनको ये पता होता है कि यार it's not that difficult to do it. So that's exactly what I've seen. I've seen कि ये जो वो entitlement है ना वो उनमें है जिन्होंने शायद वो देखा नहीं है कि यार अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अगर आप थोड़ा सा गूगल रिजल्ट्स के सेकंड पेज पे चले जाएं तो you know your life can change. So I am specifically looking for now those young kids जो कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है हम आपको अपनी ज़िंदगी के 6 महीने 1 साल देंगे, आप हमें बताएं कि किस तरह काम करना है, कैसे स्किल सीखनी है। क्योंकि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दोज यंग किड जो कहें यार अच्छा 1 महीने का कोर्स कर लिया, ये कर लिया। आई एम फोकसिंग ऑन दोज जो कहेंगे यार ठीक है you teach us the modern way of working. We are very happy being in Pakistan. We want to contribute, we want to bring in external money, ताकि we want to upgrade our lifestyle and we want to learn good ethics. मैं हैरान हूँ कि हम सब कुछ सीख लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटियों में, ethics और good life और philosophy और ये चीज़ें नहीं सीखते। बिल्कुल। I want to create I don't want to use the word cult, but I want to create this group, a community of people जो कहें कि यार अच्छा मैं जब अपनी रोज़ सुबह उठूँ तो मैं अपनी नौकरी भी करूँ, मैं अच्छी किताबें भी पढ़ूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करूँ। I live the good life. Right. And living the good life remotely, I think that's a magical concept which digital nomads have somehow found out. I just want to do it on a scale with young people now.
Very cool. So tell me a little bit more about it. Has this been launched? It's the site is up. There's a very small landing page there, jadujobs.com. ठीक है. And what we are doing is we are trying to figure out 2 or 3 streams that we want to start with. Right. I'm thinking of one is a very pure full stack engineer wali stream. Right. So anyone who has 12 years of education can come to us. अगर उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी नहीं भी ज्वाइन की, we expect them to take our 1-year boot camp. ठीक है. And we'll turn them into a full stack engineer. ठीक है. And we will place them in the job as well. Very cool. एंड सिमिलरली इसके अलावा 2 स्ट्रीम्स हम आजकल ज़रा सोच रहे हो क्या होनी चाहिए. एक, वी आर लुकिंग एट डेटा साइंस बिकॉज उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंटरनेशनली मिल रही है. एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट समथिंग विच इज़ अ लिटिल नॉन टेक्निकल, समथिंग लाइक वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट. तो एक ऐसा बंदा या कोई ऐसी खातून जो कि किसी और की ईमेल्स मैनेज कर सकती हैं, कैलेंडर मैनेज कर सकती हैं. अच्छा, ये चीज़ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स गॉटन ह्यूज इंटरनेशनली. इवन ऑनलाइन बायर्स, लोगों के लिए चीजें खरीदना और उनके घर ऑर्डर करना. वेरी ट्रू. एंड रिमोट फॉर पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली. एंड आपने ये चीज़ बड़ी अच्छी मेंशन की कि हमारे यहाँ एक जो बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है वो हमारी खवातीन है. और विद रिमोट वर्क, ठीक है, मैं कल्चरल सेंसिटिविटीज़ के ऊपर मैं तबसरा नहीं देना चाहता, लेकिन रिमोट वर्क उन कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बना रही है. एंड आई थिंक विद स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स, that's going to bridge that major gap जिसमें 50% हमारा जो वर्कफोर्स है वो बाहर बैठी हुई है. वेरी ट्रू. मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं वैसे ही इसका मॉडल सोच रहा था कि अगर एक कोई गोरा है या कोई यूएस में है या कनाडा में है, उनके लिए हायरिंग समवन एट $150 इज़ अ पीस ऑफ केक. इट्स लाइक एक्सचेंज मनी. लेकिन यहाँ पे वही $150 अगर वो कंसेक्यूटिवली आता रहे साल या 2 साल के लिए, तो वो किसी यंग बंदे की जिंदगी चेंज कर सकता है. बिल्कुल. स्पेशली इफ दे स्टार्टिंग ऑफ 20-25 हज़ार रुपए जो आपको क्योंकि ये 20-25 हज़ार रुपए आज है, इसने बढ़ के एक दिन 2 लाख 2.5 लाख बनना है. राइट. दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद कि यार कैसे इनको रियलाइज़ कराएं कि ठीक है तुम कोडर ना बनो, तुम एक वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ. लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो इंसान के बच्चे बन के बनो. कि वर्चुअल असिस्टेंट अगर आपने बनना है तो लेट मी टीच यू कि हाउ डू यू गो एंड लर्न द ट्रेड. तुम वो चेपियों वाला काम ना करो कि तुम अच्छा वो प्रोजेक्ट पे बिड करके काम आधा किया, रिव्यू नहीं अच्छा मिला. वो जो फ्रीलांसिंग, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द फ्रीलांसिंग मॉडल. राइट. एंड आई बिलीव दैट द न्यू मॉडल ऑफ वर्किंग इज नॉट स्मॉल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स. इट्स रिमोट वर्क जिधर आप किसी एक बंदे कंपनी के साथ यू आर एफिलिएटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट यू आर वर्किंग रिमोटली एट योर ओन आवर्स. एंड मच मोर सस्टेनेबल एज वेल. एंड मच मोर सस्टेनेबल. ये वो नहीं है कि अच्छा जाएंगे बिड करेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा करके फिर दे देंगे या किसी से करवा लेंगे. ये है कि आपकी ग्रोथ होगी, आपको सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज होगी. दैट्स वाई द वेरी फोकस इज अराउंड लॉन्ग टर्म रिमोट जॉब्स. कैसे हम यहाँ के टैलेंट को रिमोट जॉब्स दिलवा सकते हैं. एक्सेलेंट. कब तक ये लॉन्च हो रहा है? So we are hopeful कि दिसंबर में we'll have the first cohort ready. तो अभी अक्टूबर चल रहा है, इसके मंथ के एंड में एप्लीकेशंस हम खोलेंगे. विल ट्राई टू गेज अ लिटिल बिट कि ऑडियंस किस तरफ जा रही है, वो क्या सीखना चाह रहे हैं. आई एम वेरी होपफुल. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मैस प्रोग्राम बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिलेक्टेड प्रोग्राम. हम फेलोज चुनेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के साथ 6 महीने या 1 साल लगा रहे हैं तो वी विल प्रोबेबली पिक फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस मे बी जस्ट 20 या 30 लोग के जिनको हम सिलेक्ट करेंगे और जिनके साथ हम ये लेके चलेंगे. एंड देन वील फाइंड आउट कि व्हाट वर्कड व्हाट डिडंट, एंड देन वी विल सी कि अच्छा और कितना इसको स्केल पे रन करना है. बट द इनिशियल पायलट इज गोइंग टू बी जस्ट 20-30 people. And do you have an estimate? I know it's maybe too premature to ask, but do you have an estimate of what it will cost the fellow? So we are still thinking of एक model इसका कि क्या इसका एक model होगा. We're looking at different models. I wouldn't have a cost, but I would have kind of an idea about what the model will look like. So model हमारा बड़ा focused ये US में एक startup है Lambda School के नाम से. Lambda School का एक बड़ा ज़बरदस्त model है. Lambda School ये कहता है कि you get training with us for 6 months. We will give you a job. You pay 0 upfront. Okay. But then when we find you the job, जब आपको तो उसमें से आपकी जॉब में से there is a 10% you pay back
Right. टिल जो भी उनकी एक अमाउंट है. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने कोई लोन नहीं लेना, आपको नौकरी जब मिलेगी तब आपने पे करना है. एंड इफ़ यू डोंट फाइंड अ जॉब यू डोंट हैव टू पे बैक. Right. So effectively आप सक्सेस, उस बच्चे की सक्सेस गारंटी करते हैं essentially. Right? Yes. For the cost. कि अगर आप कहते हैं कि भाई अगर सक्सेस नहीं हुई तो you don't have to pay anything extra. Which is why we are trying to pick the very best. the very best. Because आपका इंटरेस्ट है उसको बेस्ट पिक करने पे. Yes. And साथ साथ हमने उसको देखना है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू, दिस इज नॉट लाइक वन ऑफ दोस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैस मार्केट हो, जिसमें अच्छा यार चलो 10,000 रुपये का कोर्स कर लिया या मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली या इस तरह की वो जो चीज़ें हैं. दिस इज मोर लाइक वी विल गिव यू द माइंड, वी विल चेंज योर लाइफ इन अ वे कि you develop a mindset. Changing a mindset is not something that can happen over a course of over 4 weeks. 100%. It will take some time. And it's very important as well. I know for a fact a lot of people might not understand this. True, They'll be like, true. ये क्यों कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे इतना टाइम लगाऊं. But unfortunately ये conversation थोड़ी सी ज़्यादा nuanced इस वजह से, because the way that people work in the West, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि इवन अगर आप अमेरिका में किसी जगह आप काम करें और फिर आप फ्रांस में काम करें, उसमें बड़ा फ़र्क होगा कल्चर का. Very true. So I think a major part of this program will also include, tidbits about what's the expectation when you're working remotely. जो हमारी freelancer community है मसला है. Unfortunately Amazon का काम खुलता नहीं है, तो पहले वो लोग जो है ना वो कहीं ना जहाँ से थुक लगा सकते हैं वो थुक लगाते हैं, फिर ब्लैक लिस्टिंग होती है, फिर वो सारा eBay पे ब्लैक लिस्ट हुए, यहाँ ब्लैक लिस्ट हुए. So वो चीज़ आई थिंक अवॉइड करना कि टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट लाइक टू बी वर्किंग इन द वेस्ट. देखिए, रिमोट वर्क इज़ अ फिलॉसफी which not everyone understands unless you've been through 5 years of remote work. Right. You understand the basic concepts of async versus sync. कि जी how do I, मेरा बॉस अब बैठा हुआ है मेरे से 6 घंटे की उस पर एक टाइम डिफरेंस पे, तो मैं कैसे करूँ कि मैं उसको काम भी दिखाता रहूँ, वो मुझसे तंग भी ना हो. तो यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल. इसको बाय द वे जो टेक्निकल टर्म में इट्स कॉल्ड सिंक वर्सेस एसिंक वर्क. सिंक होता है जब आप अपने बॉस के साथ सेम टाइम जोन में नहीं, बट यू आर हैविंग अ कॉल विद हिम. एसिंक इज कि अच्छा आपने बड़ा अच्छा से गूगल डॉक एक बना दिया ताकि उसको समझ आ रहा है कि मैंने आज क्या क्या किया है. सो रिमोट वर्क हैज़ अ फिलॉसफी. पीपल हु वर्क इन रिमोट वर्क, दे हैव डेवलप्ड दिस फिलॉसफी ओवर टाइम कि उनको पता है कि कैसे मैंने ऐसा काम करना है कि मेरे बॉस को ये भी पता लगता रहे कि काम भी चल रहा है एंड आई कैन एन्जॉय माई लाइफ स्टाइल एज वेल. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ यंग ग्रेजुएट टू बी दिस, कि उसको पहले दिन से पता होगा कि मैंने कैसे चीज़ें करनी है. बट बिकॉज आई हैव डन दिस फॉर द पास्ट, आई डोंट नो, 5 years, आई नो कि गूगल डॉक्स वर्सेस स्लैक वर्सेस कौन कौन से टूल्स मैंने कितनी दफ़ा यूज़ करने पर वीक, मैंने किस तरह से ईमेल भेजनी है पर वीक, मैंने क्या चीज़ें बतानी है, मैंने क्या चीज़ें लेनी है, कैसे मेरे पैसे ट्रांसफर होंगे, सैलरी कैसे, ये जो पूरा मॉडल है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच इन एडिशन टू द स्किल बिल्डिंग दैट वी विल बी. Excellent. I think this is, and I'm excited to see the results that this generates. But Saad, thank you so much for being part of the show. And अगर किसी ने आपको reach out करना, because I know for a fact that this is going to be of interest. A lot of people message me. मैं तो पर्सनली आसान है मेरे लिए, मैं रीड आउट करूँगा कि साथ के पास जाए. बट इफ समवन हैज़ टू रीच आउट टू यू, व्हाट्स द बेस्ट वे? सो एक तो मैं डिफरेंट वेज बताऊंगा. एक तो जिस तरह मैंने खुद भी आजकल यूट्यूब का चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, प्लीज़ दबाएं. साद हामिद मेरा नाम है, यू कैन सर्च, यू विल फाइंड दैट देयर. उसके अलावा आई एम मोस्टली अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ट्विटर है, लिंक्डइन पे हूँ, फेसबुक पे भी हूँ. But to catch my attention, so that's why I'm trying to differentiate between connecting with me and catching my attention. Is कि if you send me a message which has a very actionable request, is where I try to get back to people. अगर आप वैसे आके कमेंट करेंगे जी अच्छा देखा, आपको लगा बड़ा अच्छा ये वो, तो वो एक different story altogether है. And also like because there are a lot of different platforms, and I saw कि आपकी YouTube के ऊपर particularly you're teaching more around जो आपका primary core है कि skills and all of those things. Where can people find the updates? Because for example Jadoo Jobs, जब वो for example inshallah launch होगा, तो what's the first channel that you're going to put up कि finally Jadoo Jobs is live, go check it out, so that people can actively follow that. Very good point. So that's exactly मैं अपनी YouTube की जो audience है वो इसीलिए build कर रहा हूँ कि YouTube के ads पे आप जिस तरह शुरू में देखते हैं ना कि वो
वो कोई दिखाते हैं कि जी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय या ये वो, तो इसी तरह वी हैव अ बंच ऑफ वेंचर्स दैट आई सपोर्ट एंड आई वांटेड टू यूज़ माय ओन चैनल, लाइक आपको चैनल पे ही इनफैक्ट व्हेन आई लॉन्च इट तो आई विल डू अ वीडियो, फिर वीडियोज़ के शुरू में थोड़े से मैं स्निपेट्स भी डाला करूँगा, और बाकी तो मैं अपने सोशल मीडिया ट्विटर हियर एंड देयर। Right. So YouTube के ऊपर people will know कि जो भी 100%. opportunities आ रही हैं, whenever you see an opportunity, you're gonna put it out there for the audience as well. That's exactly what my YouTube is for. So अभी recently इस तरह Google के साथ हमने एक क्लाउड सीखो इनिशिएटिव किया था that went live on YouTube first. Oh wow. Yeah. जबरदस्त. चलें. Thank you so much. Super exciting. My pleasure. Thank you, Muzammil, for doing this, and good luck with the future sessions. Thank you. This was, as always, Thought Behind Things. Thank you so much for listening. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, पर्टिकुलरली ये वाली एपिसोड, क्योंकि इसमें खासकर स्किल बिल्डिंग और पैसा कमाने की बातें हैं, और ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो जाएं और पैसा कमाएं और डॉलर लेकर आएँ हमारे मुल्क में। बट थैंक यू once again for watching. My name is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi, and this is Thought Behind Things. I'll see you in the next one.